آج کے اردو نثری قواعد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسم کی قسموں کے بارے میں۔ اسم کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو سے آپ سیکھ سکیں گے اسم کی دو قسمیں، اسم عام اور اسم خاص کے بارے میں، اور ساتھ ہی اسم عام اور اسم خاص کی قسموں کی تعریف اور مثالیں بہت ہی آسان انداز میں۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اسم کی تعریف سے۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام ہو۔ اسم کی تعریف اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے: کسی چیز، شخص یا جگہ وغیرہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا نام ہو اسم کہلاتی ہے۔ اسم کی دو قسمیں ہیں: اسم خاص جسے اسم معرفہ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اسم عام اسے اسم نکرہ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اسم خاص کی تعریف اور اس کی قسموں کے بارے میں۔ اگر کسی اسم سے خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کی پہچان ہوتی ہے تو اسے اسم خاص کہتے ہیں، یا اسم خاص کی تعریف ہم اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں: اسم خاص کسی خاص شخص، شے یا مقام کا نام ہے، جیسے قرآن، مسجد اقصی، تاج محل، علی گڑھ، علامہ اقبال، کوہ نور، آگرہ وغیرہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں تفصیل سے اسم خاص کی قسموں کے بارے میں۔ اشخاص کے اسم خاص بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے پہلی قسم ہے خطاب، وہ نام جو بادشاہ، دربار یا سرکار سے اعزازی طور پر ملتا ہے، مثلا عماد الملک، اقبال الدولہ وغیرہ۔ دوسری قسم ہے لقب، ایک وصفی نام جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا ہو، مثلا کلیم اللہ لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور خاتون جنت لقب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تیسری قسم ہے عرف، عرف وہ نام ہے جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے، یا اصل نام کا اختصار یعنی چھوٹا حصہ لوگوں کی زبان پر چڑھ جائے، مثلا فخر الدین سے فخرو، نور الدین سے نورو، کلو، اچھے میاں وغیرہ۔ چوتھی قسم ہے تخلص، ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اصلی نام کے استعمال کرتے ہیں، مثلا غالب تخلص ہے مرزا اسد اللہ خان کا، حالی تخلص ہے مولانا الطاف حسین کا۔ اس کے علاوہ ممالک، دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں اور دیگر جغرافیائی نام اور امراض و علوم و فنون وغیرہ کے نام بھی اسم خاص ہوں گے۔ کبھی کبھار ہم اسم خاص کو اسم کی صفت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے رستم اور حاتم وغیرہ۔ اس کی ایک مثال دیکھیے: وہ شخص اپنے وقت کا حاتم ہے، یعنی حاتم سے بڑا سخی۔ وہ رستم ہے، یعنی وہ رستم نہیں ہے بلکہ رستم سے بڑا پہلوان ہے۔ فلاں شخص شیخ سعدی یا کالیداس ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے کوئی شخص شیخ سعدی اور کالیداس سے بڑا شاعر ہے۔ وہ شخص قیس یا فرہاد ہے، یعنی وہ شخص قیس اور فرہاد سے بڑا عاشق ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اسم عام کی قسموں کے بارے میں۔ اسم عام کی قسموں کو سمجھنے سے پہلے اسم عام کا مختصر سا تعارف اور اس کی تعریف دیکھ لیجئے۔ اسم عام کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے کامن ناؤن کہتے ہیں۔ نکرہ کے لفظی معنی ہیں وہ اسم جو کسی غیر معین چیز کے لیے آئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اسم عام کی تعریف۔ اگر کسی اسم سے خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے تو اسے اسم عام کہتے ہیں، یا اسم عام وہ اسم ہے جو ایک قسم کے تمام افراد کے لیے فرداً فرداً استعمال ہو سکے، جیسے ادیب، شاعر، اسکول، مسجد، باغ، شہر، گاؤں، کتاب، گھوڑا، آدمی، درخت، ندی، پہاڑ وغیرہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اسم عام کی چند قسموں کے بارے میں۔ اردو میں اسم عام کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اسم کیفیت سے۔
इसमें कैफियत को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वो लफ्ज़ जिससे कोई ख़ास हालत या कैफियत मालूम होती है तो उसे इसमें कैफियत कहते हैं। अस्माए कैफियत दो चीज़ें ज़ाहिर करती हैं। पहली चीज़ हालत, जैसे नींद, सेहत, कमज़ोरी, रफ्तार वगैरह। दूसरी चीज़ वस्फ़ी कैफियत, जैसे दर्द, खुशी, मुताला वगैरह। इन इसमों की हालत को हम सिर्फ अपने जहन में समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इन मिसालों से इसमें कैफियत बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली मिसाल, मैं उसकी कामयाबी की खबर सुनकर खुश हुआ। इस जुमले में लफ्ज़ कामयाबी इसमें कैफियत है। दूसरी मिसाल, वो बड़ी बहादुरी से लड़ा। इस जुमले में लफ्ज़ बहादुरी इसमें कैफियत है। अगली मिसाल, आमिर बेचैनी से अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। इस जुमले में लफ्ज़ बेचैनी इसमें कैफियत है। अगली मिसाल, मरीज़ कमज़ोरी महसूस कर रहा था। इस जुमले में लफ्ज़ कमज़ोरी किसी की हालत है, इसलिए ये लफ्ज़ इसमें कैफियत है। अगली मिसाल, वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रही थी। इस जुमले में लफ्ज़ बेताबी इसमें कैफियत है। अगली मिसाल, लोगों ने बैंकों पर एतमाद खो दिया। इस जुमले में लफ्ज़ एतमाद इसमें कैफियत है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसमें आम की अगली किस्म, इसमें ज़र्फ़ के बारे में। इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जिसमें जगह या वक्त के मायने पाए जाएं। मसलन मैदान, घर, चरागाह, झरना, धोबी घाट, सब्जी मंडी, कसाईवाड़ा, डाकघर वगैरह। इसमें आम की अगली किस्म है इसमें आला। वो अल्फाज जो आला या औजार के मानों में आए तो उसे इसमें आला कहते हैं, जैसे चाकू, छुरी, तलवार, हथौड़ा, दरांती वगैरह। कुछ इसमें आला फेल से बनते हैं, जैसे बेलना से बेलन, झूलना से झूला, झाड़ना से झाड़ू, छानना से छलनी, फांसना से फांसी, लटकना से लटकन, फूंकना से फूंकनी वगैरह। कुछ इसमें आला इसम से बनते हैं, मसलन हाथ से हथौड़ा, दांत से दतविन वगैरह। दो इसम मिलकर भी इसमें आला बनते हैं, जैसे दस्त पना, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, दस्त और पना। दस्त का मतलब है हाथ। इसमें आम की अगली किस्म है इसमें अददी। इंग्लिश में से काउंटेबल नाउन कहते हैं। दोस्तों, इसमें अददी आपको सिर्फ एक जुमले से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उनकी खिलाफत की मुद्दत 10 बरस, 6 महीने और 4 दिन है। इस जुमले में इसम बरस, महीने और दिन को अददों में गिना गया है, लेकिन 10 बरस, 6 महीने, 4 दिन इस जुमले से हटकर बरसों, महीनों और दिनों की मुद्दत को कई बरस, चंद महीने और बहुत दिन वगैरह फिक्रों में भी गिना जा सकता है। लिहाजा जिन इसमों को गिनती में गिना जा सकता है उन्हें इसमें अददी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें गैर अददी के बारे में। इंग्लिश में इसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी बातचीत में कभी एक पानी, कुछ पानी, 100 दोस्ती, थोड़ी दोस्ती, सैकड़ों मोहब्बत, 10 चांदी जैसे फिक्रे इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि पानी, दोस्ती, चांदी को हम आदाद में नहीं गिन सकते। जिन इसमों को गिना नहीं जाता उन्हें इसमें गैर अददी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें आम की अगली किस्म, इसमें मादा के बारे में। इसमें मादा को इंग्लिश में कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से तकरीबन सभी लोगों ने साइंस तो पढ़ा ही होगा, इसलिए वो ज़रूर जानते होंगे कि कुछ चीज़ें ठोस, कुछ माए और कुछ गैस होती हैं। साइंस की ज़ुबान में उन्हें मादा कहा जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को हम देख, महसूस और छू सकते हैं। वो सब मादे से बनी होती हैं। उर्दू कवायद में ऐसी चीज़ों के नाम इसमें मादा कहलाते हैं। इसमें आम की ये किस्म इसमें कैफियत के बिल्कुल उलट है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लकड़ी, शीशा, दूध, पानी, चाय, बर्फ,
मिट्टी, कोयला, गैस, भाप वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें आम की अगली किस्म इसमें जमा के बारे में। इसमें जमा को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। बाज़ इसम ऐसे होते हैं कि सूरत में तो वाहिद होते हैं लेकिन हकीकत में कई इसमों का मजमुआ होते हैं। इसमें जमा को समझने के लिए इन 3 जुमलों पर गौर कीजिए। पहला जुमला है, खेल के मैदान में तमाशाइयों की भीड़ लगी हुई है। खेल के मैदान के सैकड़ों हजारों तमाशाई भीड़ कहलाते हैं, इसलिए इस जुमले में लफ्ज़ भीड़ इसमें जमा है। दूसरा जुमला, फौज में हजारों सिपाही कतार में खड़े हैं। इस जुमले में हजारों सिपाहियों को एक लफ्ज़ में फौज कह दिया गया है और एक कतार में दसियों सिपाही खड़े होंगे, इसलिए इस जुमले में अल्फाज फौज और कतार इसमें जमा होंगे। तीसरा जुमला, मालूम कीजिए कि आपकी जमात में कितने तलबा पढ़ते हैं। अगर 40-50 तलबा एक साथ पढ़ते हों तो उनकी एक जमात बन जाती है, इसलिए इस जुमले में लफ्ज़ जमात इसमें जमा है। इन तीनों जुमलों में अल्फाज भीड़, फौज, कतार, जमात अल्फाज एक ही जगह पर बहुत से लोगों की मौजूदगी जाहिर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें जमा की मुख्तसर सी तारीफ। वो अल्फाज जो चीज़ों या लोगों का मजमूई नाम हो उसे इसमें जमा कहते हैं। इसमें जमा की कुछ और मिसालें देख लीजिए, जैसे झुंड, अंजुमन, गिरोह, छत्ता, गुच्छा, लश्कर वगैरह। दोस्तों, अगर आप इसम के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते तो इस चैनल पर इसम की तारीफ और मिसाल का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर ऊपर कार्ड पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसम की किस्मों के बारे में आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा।